Okay. Hello, students. In last class, we were studying about the valence bond theory to explain the covalent bonding between the molecules. So we have discussed all types of overlapping, SS overlapping, SP overlapping, and PP overlapping. Remaining part of the valence bond theory is the structure of the water and ammonia. I am sending structure of ammonia and water to the WhatsApp group, and want to request to one person to please share the screen. Okay. I request to one student of the class, please share the screen. Please share the structure of water and ammonia, which I have sent you on a WhatsApp group. Anshuman. Ma'am, hello. Okay. Hello. So you can see the structure of this Ma'am, water and ammonia. hello. We have discussed the Ma'am, overlapping and bond formation in the water molecule. So in water molecule, there is a overlapping between the half-filled 1s orbital of two hydrogen atom and two half-filled 2p-y1 and 2p-z1 orbitals of oxygen. Because oxygen is deficient of 2 electron, and hydrogen required 1 electron to complete its octet. So two half-filled orbital 2p-z1 and 2p-y1 of oxygen atom will overlap to the two different 1s1 orbital of the two different hydrogen atoms. So you know these all x, y, z. These all orbitals are inclined at 90-degree angle to each other. But you can see the structure of this water. What happens कि hydrogen के पास क्या है? Two hydrogen bonds are expected to actually incline at 90 degree angle. But what happens? The angle actually, the observed angle is actually 104.5 degree, and this is due to the strong repulsion between the two hydrogen nuclei. क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दे आर इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, लेकिन जैसे ही इनमें क्या होता है, देयर इज ओवरलैपिंग शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे पास पास हो जाते हैं, इसकी वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क्स, एंड इज ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ रिपल्शन एंगल जो है वो 90 डिग्री से इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, 104.5 डिग्री. That's why the shape of hydrogen is bend shape. जो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल शेप ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज अ बेन शेप. तो इसी इज ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन. जो ऑक्सीजन के साथ H जुड़े होते हैं वो एंगल कितना होता है, इट इज एक्चुअली 104.5 डिग्री 5 डिग्री, विच मेक्स इट अ बेन शेप स्ट्रक्चर. सिमिलरली इन केस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया में वन नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स, and this bonding occurs by the overlapping between the half-filled 1s orbital of 3 hydrogen atoms, because 3 hydrogen atoms are bonded to the nitrogen. So the overlapping occurs between the half-filled 1s orbitals of 3 hydrogen atom, that is the 1s1, and 3 half-filled orbital of the nitrogen atom, that is the 2px1, y1 and 2pz1. And all these bonds are single bond because these are formed by the SS head-on overlapping, SP head-on overlapping. Bonding between nitrogen and hydrogen is the
end-to-end or head-on overlapping that is responsible for the formation of the sigma bond. So 3 nitrogen and hydrogen bonds, these bonds are actually expected to be mutually inclined at 90 degree. But due to the repulsion, the actual bond angle is 107 degree. And the molecule has nitrogen atom at the apex of the pyramid. क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है, दो, अभी भी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3 and 3 जो है, these 3 are unpaired. These 3 will overlap with the s orbital of hydrogen. अभी भी नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो वो कैसे आपका ये इंक्लाइंड हो जाते हैं. जो नाइट्रोजन एटम होता है वो क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन वर्क करता है. तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है जैसे पिरामिड का एपेक्स होता है ना, कि ये आपका, इफ यू कैन सी द स्क्रीन, ये 3 यहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं आपके हाइड्रोजन 1 2 3, और ये जो टॉप पोजीशन है, ये टॉप जो है ये आपका कैसा हो गया, टॉप पर आपका नाइट्रोजन आ गया जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन्स है एफ के. तो इट गिव्स अ पिरामिड टाइप बना लेता है, फॉर्मिंग द ट्रायंगुलर बेस. सो इसीलिए जो ये आपकी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है ना, डायरेक्शनल का मतलब समझिए ना कि दे प्रोवाइड द शेप. डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि शेप प्रोवाइड करता है. जो किसी बच्चे ने पूछा भी था कि व्हाट इज डायरेक्शन एंड नॉन डायरेक्शनल, इसी वजह से ड्यू टू द रिपल्शन वर्क एंड दिस ऑल वर्क. तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द valence shell electron pair theory. We'll discuss it in short. Valence shell electron pair theory, it is also called as BSE PR theory. ठीक है, BSE PR theory के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेंट्रल there are basic 3 points of this valence shell electron pair theory. कि central atom surrounded by 2 valence shell electron pair. बेस्ड, देखिए जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मॉडल है, according to this model the shape of molecule is related to the number of valence shell electron pairs around the central metal atom in a molecule. कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो किससे रिलेटेड होता है, दैट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल. And main postulates of these models are, number 1, the valence shell electron pairs around the central metal atom in a molecule must stay as far apart as possible. जो valence shell electron pair है वो central atom के, वो किसी भी molecule में central atom से जितना दूर से दूर हो सकता है possible है, ये stay करता है वहां. Because such an arrangement would minimize repulsive electronic interaction, thereby leading to the state of minimum energy of molecule. क्योंकि कोई भी molecule कहाँ पर exist करता है, every molecule exists, जो है वो every molecule has a tendency to gain the stability, and to gain the stability molecule will try to attain the lower energy state. So ये जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो हमेशा क्या करेगा कि इट विल ऑलवेज ट्राई टू स्टे अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल मेटल एटम. मैम जो भी सेंट्रल एटम है मॉलिक्यूल का उससे हमेशा वैलेंस शेल हमेशा क्या करेगा, रिपल्शन वर्क करेगा. क्योंकि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगेंगे तो मॉलिक्यूल फिर वो कंपाउंड वो हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा. So second point is the orbital of a non-bonding or lone pair valence shell electron occupies more space. देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास, कितने टाइप के इलेक्ट्रॉन है, एक तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और जो है वो नॉन बॉन्डेड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो ऑर्बिटल ऑफ ए नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और द ऑर्बिटल ऑफ ए नॉन बॉन्डिंग valence shell electron occupies more space than the orbitals having the bonding pair electron.
दो ऑर्बिटल हुए, एक तो कौन सा है जिसके पास बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है ऑर्बिटल जिसके पास नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो कौन सा जो शेल ज्यादा मोर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, विच हैव द नॉन बॉन्डिंग pair of electron, it मैम will occupy the more space than the हेलो orbitals having the bonding pair of electron. मैम क्यों? Because a non bonding आवाज नहीं or जा रही lone क्या? pair of electron is under the influence of अंशुमन भाई only मैम one से कहो nucleus. यार कुछ पूछना है, क्योंकि मेरे को नॉन आवाज बॉन्डिंग नहीं में जा क्या रही। है, देयर इज it is under the मैम influence of only one nucleus, एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्क्रीन शेयर नहीं है। while the bonding pair electron is attracted by both the nuclei. क्योंकि अंशुमन भाई बॉन्डिंग में क्या है, बॉन्डिंग कब होगी, when स्क्रीन two का क्या atoms are करोगे, combining, ग्रुप पे देख लो ना। then the bonding will occur. और जो बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा किसके कॉम्बिनेशन में होगा, दैट वो हमेशा किसके इन्फ्लुएंस में होगा, दैट विल बी अट्रैक्टेड बाय द बोथ न्यूक्लियाई. So consequently, the non-bonding pair of electron repel the other pair of electron to a greater extent. यानी कि the force of repulsion between the non-bonding pair of electron अंशुमन ये तो एमओटी है, इसमें and बैलेंस फॉर हाँ है। means non-bonding lone pair electron repulsion force between the lone pair electron will be greater than the bonding इसमें भी ये bonding बात pair. नहीं है जो मैम पढ़ा रही है, So ऐसा कोई है ही नहीं basic टॉपिक। concept क्या आया कि VSEPR model जो theory है, that theory actually explains the shape of the molecules. इसके according क्या है, lone pair repulsion between the lone pair electron is greater than the bond pair electron. So on the basis of this, these two factors, some shape of some molecules can be explained. पहला तो क्या है, in which the central atom surrounded by two valence shell electron pair, barium fluoride. Second, दूसरे टाइप के molecules क्या है, जहां पर central atom surrounded by the three valence shell electron pair electron. यहाँ पर BeF2 में beryllium is surrounded by two, fluorine FF. In second type molecules, जहां पर central atom is surrounded by three valence shell electrons. So three valence shell pair electron example is the BF3 molecule, boron trifluoride. So third type is a central metal is surrounded by the four valence pair electron. Like methane, carbon is surrounded by four atoms. और दूसरी टाइप के मॉलिक्यूल्स जैसे कि सेंट्रल एटम सराउंडेड बाय लेस देन 4 बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन, लाइक अमोनिया मॉलिक्यूल जो भी आपको बताया हमने. सो वैलेंस VSEPR मॉडल is actually to explain the shape of the molecules, and basic principle of VSEPR theory is the force of repulsion between the lone pair electron, bond pair electron, and lone pair bond pair electron. And on the basis of this, the structure of these molecules are defined. So examples and PDF of these molecules I will send you later. We are continuing with the molecular orbital theory today. So next theory is the next theory to explain the covalent bonding is the molecular orbital theory. मैम Anshuman, please share the screen, share the PDF. देखिए, what is molecular orbital theory? In previous classes, we have studied the valence bond theory. Valence bond theory के according क्या है? The covalent bond is formed by the overlapping of the orbital. And what is the conditions of overlapping? I have told you. Next theory that is put forward to explain the covalent bonding is the molecular orbital theory. This theory was given by the Hund and Mulliken in 1932. This theory actually explained the formation of a covalent bond, the relative bond strength, and paramagnetic or diamagnetic nature of the molecule.
which which cannot be explained by the paramagnetic and diamagnetic nature of the molecule, cannot be explained on the basis of the valence bond theory. What come, so molecular orbital theory explain three properties like the formation of a covalent bond, कैसे covalent bond form होता है, bond strength, relative bond strength क्या है, कौन सा bond will be more strong, less strong, so single, double, triple bond जो है, covalent bond जो होते हैं 3 टाइप से होते हैं, single bond, double bond and triple bond, उनकी relative bond strength और paramagnetic and diamagnetic nature of the molecules. So come to the main features of this molecular orbital theory. देखिए मेन फीचर्स जो है इस थ्योरी के क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम्स ओवरलैप टू फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वैलेंस बॉन्ड में क्या था कि जो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था दैट एग्जिस्ट इन द ओवरलैप पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तभी आपका जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम ओवरलैप टू फॉर्म द न्यू ऑर्बिटल, एंड नाउ दिस न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि जो जब शेयरिंग होगी ऑर्बिटल में, जब ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग होगी वो कहां पर रहेगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में रहेगा। So, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट मींस द एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। एटॉमिक ऑर्बिटल की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। According to MOT, after the formation of a molecular orbital, atoms lose their identity. Thus, in a molecular orbital, electrons revolve in the field of more than one nucleus. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, क्योंकि एटम्स की अपनी आइडेंटिटी खत्म होगी, एटम्स कंबाइन करें, एटम जब कंबाइन करें तो एक नया ऑर्बिटल बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर एटम्स की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं। इसका मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से ज्यादा न्यूक्लियस फील्ड में रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि जितने एटम्स कंबाइन करेंगे उतने ही क्या होंगे, न्यूक्लियस। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज एक्चुअली अ पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक मींस मोर देन वन सेंटर्स। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, जितने आपके एटम्स ओवरलैप करेंगे, जितने एटम्स कंबाइन करेंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। The maximum capacity of a molecular orbital is 2 electrons with opposite spin. एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे which have comparable energies as well as proper orientation। केवल वही 2 ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करेंगे जिनकी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एनर्जी जो कि कंपेरेबल है, नियर अबाउट सेम एनर्जी है एंड विद द प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी कि पॉजिटिव लोब जब कंबाइन करेंगे देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब ऑपोजिट लोब कंबाइन करेंगे देन देयर इज रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन, सो नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्बिटल। जैसे कि वन एस ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप कर सकता है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से, लेकिन 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। 1s will overlap with 1s to form a molecular orbital. 2s will overlap with the 2s orbital to form the molecular orbital. Similarly, 2s orbital can overlap with the 2pz orbital, 2pxy with px, py with the py के साथ और pz के साथ। But 2px cannot overlap with the 2py and 2pz orbital due to the orientation। क्योंकि ओरिएंटेशन क्या है, x अगर आपका जो x एक्सिस पर है तो y एक्सिस के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता है। यानी कि एनर्जी के साथ साथ देयर आर 2 फैक्टर्स।
One is the energy, comparable energy, another is the orientation. s ऑर्बिटल आपका 1s के साथ 1s ओवरलैप करेगा, 2s के साथ 2s ओवरलैप करेगा, बट 2s और 2p की एनर्जी भी अप्रोक्सीमेट सेम है, तो 2p ऑर्बिटल के 2p ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल 2pxyz तीनों के साथ ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि स्फेरिकल शेप है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। लेकिन एस पी के साथ जो है वो कभी भी जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल है, हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो एक्स ऑर्बिटल जो है वो पी एक्स के साथ जो है कंबाइन कर सकता है, ठीक है। एस जो है वो हमेशा किसके साथ कंबाइन करेगा, एक्स के साथ। 2s 2y 2py और 2pz के साथ कंबाइन नहीं करेगा, यानी कि जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे होगा ऑर्बिटल केवल उसके साथ ही कंबाइन करेगा। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि इसमें भी एस ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग ही पॉसिबल थी। यहाँ पर क्या जो प्रॉपर ओरिएंटेशन एस के साथ ओरिएंटेशन पे कौन सा आएगा, जो जिसका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो एस के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से पास होता है, दैट विल बी द एक्स ऑर्बिटल। एक्स वाई जेड में कोई भी जो आपका हॉरिजॉन्टल यानी कि जो एक्स एक्सिस पर होगा वही ऑर्बिटल केवल एस के साथ ओवरलैप करेगा, पी वाई के साथ पी वाई ओवरलैप करेगा, पी जेड के साथ पी जेड ओवरलैप करेगा, लेकिन पी एक्स के साथ 2py और 2pz ओवरलैप नहीं कर सकता है, बिकॉज देयर ओरिएंटेशन आर नॉट सिमिलर, नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। कि एक आपका जो है वो एक्स अगर हम वाई एक्सिस पे ले लें, पी ऑर्बिटल जो है वो डम्बल शेप, और वो एक्स के एस ऑर्बिटल के साथ कैसे ओवरलैप करेगा, साइडवाइज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो these are the condition for the overlapping, means condition for overlapping means the condition for the formation of the molecular orbital। केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके ओवर बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे जो एंड द प्रॉपर ओरिएंटेशन, एंड these atomic orbitals will overlap through the linear combination of atomic orbitals। लीनियर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, केवल वही ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे जो कि एक साथ मतलब जिनकी एनर्जी जो है वो क्या है अप्रोक्सीमेट सेम है, और जिनके वेव फंक्शन जो है या तो उनको कंस्ट्रक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि एड ऑन होंगे या एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम वेव फंक्शन यानी कि ऑर्बिटल जैसे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या था आपका, तो वेव फंक्शन एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वेव फंक्शन क्या लिया, साई ए एंड साई बी। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग क्या है कि इधर the combination of atomic orbital can take place either through the addition or constructive mechanism or by the subtraction or the destructive mechanism of the wave function of the atomic orbital involved। यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि कंबाइन करके मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, उनके अगर वेव फंक्शन या तो ऐड होंगे एडिशन के थ्रू और या फिर सब्ट्रैक्शन। तो व्हेन suppose there are two atomic orbitals, wave function of two atomic orbital is represented by the psi a and psi b, ठीक है, wave function is represented by psi a and psi b। So when this psi a and psi b will involve in addition, or you can say when the molecular orbital obtained by addition of wave function of these atoms psi a and psi b, this is called the constructive interaction। This orbital is called the bonding molecular orbital, and the energy of the bonding molecular orbital is less than that of the constituent ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, एटॉमिक कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है। अभी आपको क्या बताया कि स्टेबल स्टेट में आने के लिए एनर्जी क्या होती, कम होनी चाहिए। एवरी सब्सटेंस हैज टेंडेंसी टू गेन स्टेबिलिटी,
And to gain this stability, that moiety should be in the lower energy state. तो एटम से जो मॉलिक्यूल बनेगा, तो मॉलिक्यूल तब एग्जिस्ट करेगा जब उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी. So energy of this bonding molecular orbital will be less than the energy of orbitals, and this bonding molecular orbital stabilizes the molecule. And the difference between the energy or difference in the energy between the combining atomic orbital and the bonding molecular orbital is called the stabilization energy. Please remember this point. If you want to note down, you can note down the energy of the bonding molecular orbital is less than the combining atomic orbital. And this bonding atomic orbital is formed by the addition of the wave functions of the atoms involved in the overlapping or the bonding. Or you can say this bonding orbital is formed by the constructive interaction of the wave functions of the atoms involved. So this bonding orbital is represented by psi MO is equal to psi A plus psi B. ठीक है. इसके बाद सेकंड दूसरा जब क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग या तो कंस्ट्रक्शन होगा या एडिशन होगा या वेव फंक्शन क्या होंगे, वेव फंक्शन का क्या होगा आपका सब्ट्रैक्शन होगा. So when the molecular orbital obtained by the subtraction of wave function of atom involved, यानी कि psi is equal to, देखिए wave function आपके पास क्या है psi A and psi B. So when the molecular orbital is formed by the psi A minus psi B, then this orbital is called as the anti-bonding molecular orbital, and the energy of this anti-bonding orbital is higher than the atomic orbital. समझ में आया बात? What I want to say कि जो molecular orbital की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी. एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, जो दो एटम्स कंबाइन करके आपको मॉलिक्यूल बना रहे हैं. तो मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, atomic or bonding molecular orbital की energy will be less than the combining atomic orbital, but the energy of the anti-bonding molecular orbital will be higher than the atomic orbital. ये आपको ये बात समझ में आई कि what are bonding BMO and ABMO. BMO is bonding molecular orbital and ABMO is anti-bonding molecular orbital. देखिए जब कोई दो एटम्स ओवरलैप करते हैं फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल. तो एमओटी के अकॉर्डिंग जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, जब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करके एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, उस नए ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. तो जब मॉलिक्यूल बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है. अब नाउ देयर इज अ न्यू मॉलिक्यूल, न्यू ऑर्बिटल, दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड द बॉन्ड, दैट ऑर्बिटल इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं. और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है. ठीक है. सो वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज कैपेसिटी टू रिसाइड 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी दो टाइप के हुए हैं. अभी तक जितना बताया उसके अकॉर्डिंग क्या है, दीस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर 2 टाइप. एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है. जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया तो एटम्स की कोई आइडेंटिटी नहीं, एटम अब खत्म. अब क्या, एक नया मॉलिक्यूल बना, और वो मॉलिक्यूल किसकी वजह से बना, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर 2 टाइप्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग. तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या है, देखिए जब एटम्स कंबाइन करते हैं, एटम का कॉम्बिनेशन जो होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, वही दो ऑर्बिटल एक दूसरे को अप्रोच करते हैं जिनकी एनर्जीज लगभग सेम होती है एंड दे हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन. सो ये कैसे कंबाइन करेंगे कि इनकी वेव फंक्शंस, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनके वेव फंक्शन या तो एक दूसरे से ऐड होंगे या वेव फंक्शन दो ऑर्बिटल्स के एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे. व्हेन द वेव फंक्शंस ऑफ 2 ऑर्बिटल्स add
to each other, then there is a formation of the bonding orbital. So suppose there are two wave function, दो atomic orbital है, एक A atomic orbital है, दूसरा B atomic orbital है. एक के wave function को psi A से represent किया, दूसरे को psi B से represent किया. तो जब ये psi A और psi B दोनों एक दूसरे से add हो जाएंगे, तब क्या बनेगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो होगी वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी. इसका मतलब क्या है? जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इट विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल, एंड डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द atomic orbital and this bonding molecular orbital is called as the stabilization energy. And what other proper characteristics of the bonding molecular orbital? That it possesses the high electron density in the region between the two nuclei. It imparts stability to the molecule. This bonding molecular orbital every electron makes contribution to the direction of to the attraction of two combining atoms. यानी कि हर इलेक्ट्रॉन किसके लिए कंट्रीब्यूट करता है? एटम्स के बीच में अट्रैक्शन के लिए. और ये तभी it is only formed when the lobes of the combining atomic orbitals possess the same sign. जब सेम साइन की ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दूसरा ऑर्बिटल कौन सा बनता है? एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग कैसे बनता है? जब वेव फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, यानी कि व्हेन द अपोजिट साइन लोब्स ऑफ द ऑर्बिटल्स कंबाइन, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस कंबाइन करेगा, देन द फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. So the anti-bonding atomic orbital is formed by the constructive interaction or by the subtraction of the two wave function of the two atomic orbital. ये anti-bonding molecular orbital is represented by putting asterisk over psi. Psi ABMO. Bonding orbital is BMO and anti-bonding orbital is ABMO. So by putting asterisk over the sign representing the anti-bonding orbital. So psi ABMO is equal to psi A minus psi B. So what are the characteristics of this anti-bonding atomic orbital? First is the energy of this anti-bonding atomic orbital is higher than the combining atomic orbital. And it possesses low electron density in the region between two nuclei. This anti-bonding molecular orbital provides or imparts instability to the molecule. And every electron in ABMO makes contribution to the repulsion of two combining atoms. हर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके लिए कंट्रीब्यूट करता है? फॉर द रिपल्शन बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स. जबकि बीएमओ में एवरी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट्स फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स. यहाँ पर every electron contributes to the repulsion between two atomic orbitals. And this ABMO is formed only when the lobes of the combining atomic orbital possess the opposite sign. So this is the bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. Now, the shape of the molecular orbital form depends on the type of the combining atomic orbitals. जो molecular orbital form होता है by the combination of atomic orbitals, उसका shape जो है वो depend करता है कौन से atom जो है वो combine कर रहे हैं. ठीक है. Bonding molecular orbitals are represented by the sigma, pi, delta, etc. जबकि anti-bonding molecular orbital कैसे represent करेंगे? By putting asterisk over sigma asterisk, pi asterisk, delta asterisk. And the inner molecular orbital, जो जिनके इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? Those are called the non-bonding electrons. Now, you know that the capacity of this molecular orbital is the 2 electrons. So in a molecular orbital, there is a maximum 2 electrons can exist. Now, what are the rules behind the filling of the electrons? So filling of this molecular orbital takes place according to the 3 principal
which we have discussed in the atomic structure. What are these three principles? Pauli's exclusion principle, Aufbau principle, and Hund's principle. What is Pauli's exclusion law? That the maximum number of electrons was, यानी कि एक molecular orbital में maximum कितने electrons होंगे? 2. Second is the Aufbau principle. Aufbau principle के according के filling of molecular orbital in order of increasing energy. जो इन ऑर्बिटल में फिलिंग होगी वो कैसी होगी? इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग कैसे, लोअर एनर्जी किसकी है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग. तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें फिल होगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. फिर किसमें फिल होगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में. बॉन्डिंग में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो फिलिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. एंड सेकेंड इज द हुन्स प्रिंसिपल. Hund's के अकॉर्डिंग क्या है? द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in the degenerate molecular orbital does not occur until each of them has 1 electron. यानी कि जो degenerate orbitals means orbitals having same energy. वो orbitals molecular orbital जिनकी energy same है उनमें pairing तब तक start नहीं होगी until all the degenerate means all the same energy orbitals are half filled. जब सारे same energy के orbitals half filled हो जाएंगे then the pairing will start. So the filling of electron will take place according to the Aufbau principle, Pauli's exclusion principle, and Hund's principle. Now come to the paramagnetic and diamagnetic property. So if a molecule contains one or more unpaired electron in its molecular orbital, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 या उससे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन इट इज पैरामैग्नेटिक, otherwise diamagnetic. If all the electron in the molecular orbitals are paired, then the molecule will be diamagnetic. If there is a presence of 1 or more unpaired electron in any molecular orbital, whether it is a bonding or anti-bonding, किसी भी molecular orbital में if there are unpaired electron, means the molecule is paramagnetic in nature. और जितने ज्यादा greater the number of unpaired electrons in molecular orbital, higher is its paramagnetic character. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. सपोज द मॉलिक्यूल इज हैविंग देयर आर 3 मॉलिक्यूल, वन इज हैविंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज हैविंग 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, which one will be more paramagnetic? Having 2 unpaired electron will be more paramagnetic. So this is all about the molecular orbital theory. Now combining atomic orbital, कब combine करेंगे? They should possess the same symmetry about the molecular axis. है ना, जैसे आपको पता है कि पी जेड ऑर्बिटल जो है वो कभी भी एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करेगा दूसरे एटम के. तो सिमेट्री जब किसके कि जब सेम सिमेट्री होगी अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, देन देयर विल बी ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल. इसके बाद आ जाते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम. एनर्जी लेवल डायग्राम में देखिए बेटा पीडीएफ में दिया होगा जहां पर जो रिलेटिव एनर्जीज दी है फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 7 और ऊपर आओ बेटा, बैक पे हो, बैक पे हो पीडीएफ पे, बैक आओ बेटा. ये तो आप आगे चल रहे हो शायद, और बैक करो. हाँ यस, यहीं पे तो दिया था बेटा. हाँ ये देखिए क्या है कि ये आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल शेप भी बताई देते, आगे वाले पीडीएफ पे आ जाओ बेटा, जिसपे भी थे, बैक करो थोड़ा सा, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए 1s विल कंबाइन विद 1s एंड 2 कंबाइन करेंगे देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल फॉर्म, और जब अपोजिट लोब कंबाइन करेंगे देन द फोर्स ऑफ रिपल्शन विल वर्क। सिमिलरली जब पीएस इंटरेक्शन होगा, यस दिस इज एसएस ऑर्बिटल, तो देखिए एसएस जब से पॉजिटिव सेम लोब प्लस प्लस लोब कंबाइन करेंगे देन दिस इज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जब अपोजिट लोब कंबाइन करेंगे देयर इज अ रिपल्शन, तो बॉन्डिंग पेयर कहां रहेगा, बीच में, है ना, ये रिपल्शन डिफरेंट लोब्स कंबाइन करेंगे देन देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन विल वर्क। सो दिस इज दी, ये नीचे वाला जो क्या है, दिस इज दी एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल। सिमिलरली 2s ऑर्बिटल भी कंबाइन करेंगे। नाउ कम टू द पी एसपी इंटरेक्शन। देखिए एसपी इंटरेक्शन जो है वो, आगे बढ़ो बेटा, ठीक है, ओके, एसपी, ये हाँ, एसपी इंटरेक्शन में भी देखिए एस के साथ पी कंबाइन करेगा, जब आपका सिग्मा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, when there is a formation of a PS coaxial interaction, opposite lobes will combine, then there is formation of sigma anti bonding orbital। ठीक है, इसके बाद पीपी इंटरेक्शन में क्या है, पीपी ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो साइडवेज ओवरलैपिंग है, साइडवेज ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब होगा, जब आपका सेम लोब्स कंबाइन करेंगे, और जब अपोजिट लोब कंबाइन करेंगे देन देयर विल बी रिपल्सिव फोर्सेस वर्क, तो ये लोब्स अलग अलग हो जाएंगे और सेंटर में क्या रहेगा, इंटरमॉलिक्यूलर एक्सेस। नाउ कम टू द एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल देखिए फॉर एनर्जी लेवल, यस, हाँ और आगे आओ बेटा, थोड़ा सा और आगे, नहीं जहां पर कॉन्फ़िगरेशन दिया है, कॉन्फ़िगरेशन दिया है बेटा, बैक करो जहां पर एनर्जी लेवल का सीक्वेंस दिया है, कॉन्फ़िगरेशन नॉट द डायग्राम, और बैक आओ एक स्लाइड और बैक, यस दिस, देखिए यहाँ पर फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 7, इसको आप लिख लीजिए फॉर हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखिए 1 एटॉमिक नंबर 1 क्या है, हाइड्रोजन एटम, 7 इज ऑफ नाइट्रोजन, लेकिन वी आर डिस्कसिंग ये एटॉमिक नंबर, यहाँ पर इसकी जगह हम किसकी, मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो ये एटॉमिक नंबर 1 to 7 जब बना रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल जब बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 to 14, है ना, यानी कि फॉर, यहाँ पे आगे आप लिख लीजिएगा इसके, फॉर एटॉमिक नंबर 1 to 7 के बाद आगे लिखिएगा फॉर H2 to N2, H2 से लेकर के N2 यानी कि 2 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन्स तक के लिए द एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सॉरी सिग्मा बॉन्डिंग 1s, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, आफ्टर दैट सिग्मा बॉन्डिंग 2s, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, देन सिग्मा 2px, सॉरी पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के बाद पाई 2px एंड पाई 2py, देन सिग्मा 2pz, यानी कि पाई px और पाई py कहां पर होंगे, ये सेम एनर्जी पे होंगे, दीज आर द टू डिजेनरेट ऑर्बिटल, देन सिग्मा 2pz, इसके बाद फिर एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, देन सिग्मा 2p सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz फॉर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, ये जहां पर लिखा है फॉर एटम ऑर्बिटल ग्रेटर देन 7, इसको लिख लीजिएगा फॉर ऑक्सीजन टू नियॉन O2 टू Ne2, 7 के आगे क्या हो गया आपको 14, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा तो 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, इसको लिख लीजिए फॉर एटॉमिक नंबर 16 to 20, तो ऑक्सीजन टू नियॉन O2 टू Ne2, देखिए स्टार्टिंग सेम रहेगी, सिग्मा बॉन्डिंग देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s सिग्मा बॉन्डिंग 2s, देन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, देन sigma 2pz. Now see the difference. Up to the 14 electrons, the energy of sigma 2pz is higher than the pi bonding orbitals.
जबकि जैसे ही 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं देन 2pz कहाँ है, लोअर एनर्जी पर है कंपेयर टू द π2px एंड π2py, एंड रिमेन जो है वो सेम रहेगा, एंटी बॉन्डिंग में जो सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। नाउ ठीक है, तो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द एनर्जी, and on the basis of this sequence the energy level diagrams for the molecular orbitals are drawn. So in next class we'll discuss the energy level diagram for the molecular orbitals and the bond order and the calculation of the paramagnetic and the diamagnetic properties of the molecule. So this is over for today. In next class we'll continue with the rest portion of the molecular orbital theory. Okay beta, Thank you so over much, for ma'am. today. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Mm-hmm.